हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। आज हम पढ़ते हैं थर्ड चैप्टर क्लास 10th के मैथ्स का, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हमने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था। लीनियर इक्वेशंस क्या होती है, 10th में भी स्टार्टिंग में भी सेकेंड चैप्टर में इंट्रोडक्शन था। और आज हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती है। आज अभी हम इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि किसको लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं और जनरल फॉर्म में किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो लीनियर इक्वेशंस किसको बोलते हैं? Linear equations means equations having one degree, means जो भी उनका वेरिएबल होगा उसके जो हाईएस्ट पावर होगी that will be only one. So linear equations means equations having one degree only. Say for example, अभी यहाँ पे हमारे को चैप्टर में क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो अभी सिंगल वेरिएबल में नहीं, लीनियर इक्वेशंस हैज टू बी इनटू two variables. Suppose if I write 2x plus y equals to 5, तो अब ये लीनियर इक्वेशन हो गई बिकॉज x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है और यहाँ पे दो वेरिएबल हैं x एंड y. सो दिस इज ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स इज x एंड y. सो वेरिएबल कोई भी हो सकता है, x y हो सकता है, p q ले कोई, अभी जैसे हमने ये p q के टर्म में भी लिख सकते हैं. सपोज p प्लस 6q इक्वल्स टू 2. तो ये एक लीनियर इक्वेशन ये p और q फॉर्म में आ गई. यहाँ पे p की भी 1 पावर है, q की भी 1 पावर है. सो 1 पावर और 1 डिग्री इज द लीनियर इक्वेशन. दो वेरिएबल आ गए p एंड q. अब इसका जनरल फॉर्म देखिए, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म इज ax plus by plus c equals to 0. So this is the general form of any linear equation, ax, vy and c. Suppose if we have to write two linear equations, so two general form will be a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Next would be a2x plus v2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0. सो इस तरह से अभी हम दो लीनियर इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेंगे. एक में हमने कोफिशिएंट क्या ले लिया, a1, b1 एंड c1. सेकेंड वाली में ले लिया a2, b2 एंड c2. तो ये हमारी जनरल फॉर्म आ गई किसी भी लीनियर इक्वेशन के लिए. इसी की बेसिस पे अभी हम आगे नेक्स्ट में एक्सरसाइज 1 पे जाते हैं, जहाँ पे अभी लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे कि लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है. सो नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज 3.1. फर्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Isn't this interesting? Represent this situation algebraically and graphically. So we need to find out what is the algebraic relationship between their ages. Suppose let the age of Aftab is equals to x years. Age of Aftab is equals to x years, and let the age of daughter is y years. Age of daughter is y years. So according to the first condition, see, 7 years ago I was 7 times as old as you were then. 7 years ago. So age of Aftab 7 years ago. So 7 years ago age would be x minus 7 years, and age of daughter 7 years ago, so this would be y minus 7 years. Now the relation is that 7 years ago I was 7 times as old as you were then, means Aftab was 7 times
the age of the daughter. So according to the first condition, this would be age of daughter would be means age of Aftab x minus 7 will be equals to 7 times y minus 7, because the age of Aftab is 7 times age of the daughter. Now we will solve this. So this is x minus 7 equals to 7y minus 49. We will simplify it. So x minus 7y equals to minus 49 plus 7. So this is x minus 7y equals to minus 42. So this is the first equation now. Similarly, we will find the next. Also 3 years from now. So age of, now this is the according to the second condition, age of Aftab after 3 years is x plus 3 years, and age of daughter after 3 years, this would be y plus 3 years. Now the situation is that after 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. So now Aftab is 3 times the age of the daughter. So x plus 3 is equals to y plus 3 iska 3 times. Now we will solve. So this is x plus 3 equals to 3y plus 9, or x minus 3y equals to 6. So this is the second equation now. Now these two equations will be solved graphically. These are the equations we got. So we will be solving this graphically. Now we will discuss how to solve the equations graphically, or how to make a graph of a given equation. So first equation we will write here, x minus 7y equals to minus 42. So this is the first equation, and second is x minus 3y equals to 6. So this is the second equation. अभी हम इन दोनों इक्वेशंस के लिए क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं. अभी ध्यान से देखते हैं कि ग्राफ इक्वेशन के लिए किस तरह से ड्रॉ किया जाता है. सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं. इसमें भी कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं. दिस इज द एक्स वाई एंड दिस इज माइनस वाई एंड दिस इज माइनस एक्स. कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज इसके पॉइंट्स को अभी हम बाद में मार्क करते हैं. एक बार के लिए इक्वेशंस की पहले वैल्यूज को निकाल लेते हैं. अभी देखो, सपोज अभी हम फर्स्ट इक्वेशन को लेते हैं. यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हमने लिया. सो x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42. अभी फर्स्ट इक्वेशन के लिए एक टेबल बनाते हैं. इसमें x और y इस तरह से हमने दो पोर्शन में लिख लिया. मिनिमम ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे को मिनिमम 3 वैल्यूज चाहिए. मिनिमम 3 चाहिए. अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप 4 भी वैल्यूज ले सकते हो, बट मिनिमम 3 है. चलो अभी हम यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए 4 वैल्यूज को लेकर के चलते हैं. इसमें अभी हम क्या करते हैं, x की हम कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लेते हैं. x की वैल्यूज के लिए अभी हम क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यूज को लेते हैं. इससे 0 हो गया, उसके बाद फिर हमने 1 ले लिया, सपोज -1 ले लिया, फिर 2 ले लिया. अगर आप बिगर वैल्यूज को लोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस में आपको बहुत ज़्यादा एक्सिस की लेंथ करनी पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे बिगर वैल्यूज आएंगे. तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अभी स्मॉलर वैल्यूज को लेते हैं ताकि कोऑर्डिनेट एक्सिस की ज़्यादा लेंथ नहीं बढ़े. तो स्मॉलेस्ट वैल्यूज को ये हम x की वैल्यूज कोई भी ले सकते हैं. और यहाँ पे हमारे पास में फ्रीडम है कि हम चाहे x की वैल्यूज को एज्यूम करें या फिर y की वैल्यूज को एज्यूम करें. अगर हम y की वैल्यूज को एज्यूम करेंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली क्या करेंगे, x की वैल्यूज को निकालेंगे. अभी हमने x की वैल्यूज को एज्यूम किया हुआ है तो कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज को निकालेंगे. अभी सपोज हमने इस इक्वेशन को लिया,
यहाँ पे x की वैल्यूज को रखा हुआ है। x की वैल्यू कितनी है 0, तो इस इक्वेशन में पहले x की वैल्यू रखो। दिस इज 0 माइनस 7y इक्वल्स टू -42। सो 0 का कोई वैल्यू नहीं। सो अभी इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में ले सकते हैं। दिस इज 7y इक्वल्स टू -42, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया। सो y इक्वल्स टू 42/7, सो दिस इज 6। So corresponding to x equals to 0, we are getting y equals to 6. So y की वैल्यू अभी कितनी आ गई 6, जब मैंने x की वैल्यू इसको कितना रखा 0। सिमिलरली अभी सेकेंड में x की वैल्यूज को रखते हैं। x की वैल्यू अभी कितनी रखनी है 1, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखो, तो 1 माइनस 7y इक्वल्स टू -42, -7y इक्वल्स टू -42 माइनस 1। सो this would be -7y equals to -43, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, therefore y equals to 43/7, so this would be 6.12 around. We can take up roughly 6.12. Next we will substitute -1, so this would be x की जगह पे -1 रखो, so -1 माइनस 7y इक्वल्स टू -42, so -7y इक्वल्स टू -42, -1 इधर जाएगा +1, so -7y इक्वल्स टू -41, और y इक्वल्स टू माइनस माइनस साइन कैंसिल हो गया, y इक्वल्स टू 41/7। So this would be 5 times, then 8 and 5. So this will be 5.85 maybe. And next one would be, will be substituting x equals to 2 anywhere. So this is 2 minus 7y equals to -42. So -7y equals to -42 minus 2. So -7y equals to -44, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, therefore y equals to 44/7। 44/7 को हम सॉल्व कर लेते हैं। So this would be 6.3 ऑलमोस्ट वी कैन टेक अप। सो 6.3। इस तरह से भी हमने क्या किया, x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके y की करस्पॉन्डिंगली वैल्यूज को निकाला हुआ है अभी। अब ये जो भी वैल्यूज हमारी टेबल में आई है, इसको अभी हम क्या करते हैं, इस पर कोऑर्डिनेट्स पे प्लॉट करते हैं। तो अभी हम इसके एक्सिस को बना लेते हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7। इधर अभी ये माइनस में रहेगा, तो इसको अभी माइनस में वैल्यूज को रखो एक्स की। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड -7। अब इधर पे हम कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं। x 0 है, y की वैल्यू कितनी आ रही 6, तो x 0 करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू 6 आ रही थी, ये वाला पॉइंट आ गया। सो दिस इज रिगार्डिंग टू दिस 0 एंड 6, 0 और 6 के लिए। अभी x की वैल्यू कितनी आ रही 1, सो x की वैल्यू 1 है, और y की वैल्यू कितनी आ रही 6.12, सो ये 6 से थोड़ा सा ज़्यादा इधर पे आएगी 6.12। अभी x की वैल्यू -1 है, तो -1 ये रहा, और y की वैल्यू 5.85 है, तो 5.85 मीन्स दिस इज लेसर देन 6, सो समवेयर हियर। नेक्स्ट x इज 2 एंड y इज 6.3, सो 2 और 6.3 6 से थोड़ा सा ज़्यादा, तो ये इस जगह पे आ गई। इसको अभी हम ज्वाइन कर देंगे स्केल से रख करके, बिकॉज ये सारे सारे पॉइंट 1 2 3 एंड 4 ऑल 4 पॉइंट विल बी इन द स्ट्रेट लाइन। सो अभी हम स्केल से रख करके इसको ज्वाइन कर देंगे सारे सारे पॉइंट्स को।
और इसको अभी इस लाइन को आगे भी प्रोड्यूस कर देंगे ऐसे, इसके एरो हेड्स बना देंगे और इस इक्वेशन के ऊपर जो भी हमारी ग्राफ आया हुआ है इसके ऊपर जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन है इसको लिख देंगे। सो x माइनस 7y इक्वल्स टू -42, ये हमारी ग्राफ आ गई। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे, सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए भी ग्राफ बनाएंगे। सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए अगर हम टेबल बनाते हैं, सो दिस इज x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। सेकेंड इक्वेशन के लिए भी देखते हैं। अभी x और y दो कोऑर्डिनेट्स ले लो, x y, x की सिमिलरली जो अभी हमने ऊपर वैल्यू अज्यूम किया हुआ है, सिमिलर वैल्यूज को ले सकते हैं 0, 1, -1 एंड 2। अब इस x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज के साथ में हम क्या निकालेंगे, y की वैल्यूज को लेकर के आएंगे। सो x को अभी हम 0 यहाँ पे रखते हैं। सो दिस विल बी 0 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और माइनस 3y इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 6 डिवाइडेड बाई -3, सो दिस इज -2। सो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग अभी y की वैल्यू कितनी आ गई, -2। अभी हमने यहाँ पे -2 रख दिया। सिमिलरली दूसरी वैल्यूज को रखो, x1, सो दिस इज 1 माइनस 3y इक्वल्स टू 6 और -3y इक्वल्स टू 6 -1। सो माइनस से माइनस अभी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 5। सो दिस इज 5। सो -3y इक्वल्स टू 5 और y इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाई -3। सो दिस विल कम -1 जा 3 to -1.67। So we can write -1.67। So अभी x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही, -1.67। सिमिलरली दूसरी वैल्यूज को देखते हैं। अभी x की वैल्यूज को हम -1 रखते हैं। सो -1 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। सो -3y इक्वल्स टू 6 प्लस 1। सो -3y इक्वल्स टू 7 और y इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई -3। सो दिस विल कम -2.33। सो -2.33 ये वैल्यूज आ गई। सिमिलरली अभी x की जगह 2 को रखते हैं। सो दिस इज 2 माइनस 3y इक्वल्स टू 6। सो -3y इक्वल्स टू 6 माइनस 2, -3y इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू -4/3। सो दिस वुड बी 1.33 और माइनस साइन। ये वैल्यूज अभी हमारी x और y के आ गई। तो सिमिलरली अभी इसको भी हम कोऑर्डिनेट एक्सिस में ड्रॉ करते हैं। इसके पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट एक्सिस में देखो, x 0 है, y कितना है -2, तो x 0 के लिए -2 ये वाला पॉइंट आ गया। सिमिलरली अभी x कितना है यहाँ पे 1 और y कितना है -1.67। सो -1.67 मीन्स y एक्सिस इज डाउनवर्ड। सो 1 और -1.67, सो इट विल बी मोर देन हाफ, ये पॉइंट आ गया अभी। सिमिलरली दूसरा -1, x इज -1, सो x -1 ये रहा और y -2.33, सो -2.33 इधर, तो -1 और -2.33 ऑलमोस्ट इधर पे ये पॉइंट आया। 2x अभी कितना है +2 और y निगेटिव -1.33, सो 2 और -1.33 ये आया। अभी हम इसको भी इसी तरह से आगे प्रोड्यूस कर देंगे। इसको ज्वाइन करते हैं, सारे पॉइंट्स को स्केल से ज्वाइन करेंगे और आगे ऐसे प्रोड्यूस कर देंगे। तो ये अभी इसके ऊपर भी इक्वेशन लिखेंगे, x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। तो ये अभी हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंट होगी दोनों की दोनों इक्वेशंस को। ओके, सिमिलरली हम बाकी के क्वेश्चन के लिए भी इसी तरह से ग्राफ बनाएंगे। x की वैल्यूज को एज्यूम कर लेंगे और उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज को निकालेंगे। अभी सेकेंड क्वेश्चन के लिए बनाते हैं ग्राफ। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। The coach of a cricket team buys 3 bats and the 6 balls for ₹3900.
Let us see wise another bat and 3 more balls for the same kind for rupees 1300. Represent the situation algebraically and graphically. So let the cost of, so see wise bats and ball, let the cost of bat is x, cost of one bat is equals to x. Similarly, let the cost of one ball is equals to y. So therefore, the cost of 3 bats and 6 balls, so it will be 3x plus 6y equals to 3900. So this is the equation number 1 based on the first condition. Similarly, दूसरी इक्वेशन जब क्या है कि let us see y is another bat means one bat only. So second equation पे क्या हो जाएगा, ये 1 bat means 1x, so this is simply x plus 3 more balls means 3 balls 3y equals to 1300. So अभी ये हमारी इक्वेशंस आ गई। इन दोनों इक्वेशंस को अभी हम सिमिलरली एक ग्राफ बनाएंगे और उस पर रिप्रेजेंट करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। तो ये वही हमारा एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन आ गया। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स एंड द 1 kg grapes ऑन अ डे was found to be rupees 160. After a month, the cost of 4 kg apples and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situation algebraically and graphically. Let the cost of 1 kg apples is equals to rupees x. Similarly, the cost of 1 kg grapes is equals to rupees y. Therefore, according to the first situation, जहाँ पे भी कितना है 2 kg apples है, 1 kg grapes है, so this will be 2x plus y equals to 160. This is the equation number 1. And similarly, the second 4 kg apples and 2 kg grapes, so 4x plus 2y is equals to 300. ये इक्वेशन नंबर 2. सो इन दोनों इक्वेशन के लिए भी हम सिमिलरली ग्राफ्स को बना सकते हैं और ग्राफ जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा उसी से हम दोनों की वैल्यूज को निकाल सकते हैं। सो अभी ग्राफ बनाने के लिए आप सिमिलरली x की वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हो या तो y की वैल्यूज को अज्यूम कर सकते हो। रिगार्डिंगली आप क्या करो, x और y जो दूसरा अननोन रह गया उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करो, फिर उनको सीधा कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर दो, जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया हुआ था। सेम जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ग्राफ उसी में हम करस्पॉन्डिंग जो भी वेरिएबल्स हैं x और y उसकी वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम ग्राफिकली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं किस तरह से इक्वेशंस को हम सॉल्व करते हैं और उनकी कंडीशंस क्या क्या अलग अलग है। होप स्टूडेंट्स अभी तक हमने जो भी पढ़ा हुआ है आपको समझ में आया होगा। वो इनकेस अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स बनती है आपकी, तो आप गिवन कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको इमीडिएटली इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। और प्लीज़ आप हमारे एपिसोड्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी रेफरेंस में दीजिए उसको, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ को भेज सकते हैं और अच्छे अच्छे सोल्यूशंस को ला सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू।